মুহূৰ্তত আন এক ডাঙৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এটা বিশেষ ভিডিঅ' বাৰ্তা বিধায়ক অখিল গগৈ। যেহেতু অসম ভ্ৰমণত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিছে, হিন্দীতে এটা বিশেষ ভিডিঅ' বাৰ্তা দিছে অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা। সমান্তৰালকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে, অনুৰোধ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে যে এবাৰ মাত্ৰ আপুনি সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাওক মোদীজী। এনেধৰণে অখিল গগৈয়ে ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই বিশেষ আহ্বান জনাইছে। সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ 5টাকৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ। এই 5টা বিশেষ অনুৰোধ কি সকলোবোৰ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অসম ভ্ৰমণক আদৰণি জনালে বিধায়ক অখিল গগৈ। নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ অখিল গগৈৰ 5টা বিশেষ অনুৰোধ, 5টাকৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে অখিল গগৈয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। অসমলৈ আহিছে যেতিয়া এবাৰ মাত্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাওক মোদীজী। জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক। SITয়ে যিখন চাৰ্জশ্বিট দিছে সেই চাৰ্জশ্বিটে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় নিদিয়ে, আপুনি নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা লওক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতক নৰেন্দ্ৰ মোদী। অসমৰ জনতাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক। অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়ক, এই অনুৰোধ জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। হিন্দীতে বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' বাৰ্তা। এই বিশেষ ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈ। জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজী। এনেধৰণে হিন্দীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিশেষ অনুৰোধ জনালে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। সমান্তৰালকৈ এটা অনুৰোধ জনাইছে যে অসমলৈ আহিছে যেতিয়া এবাৰ মাত্ৰ সোণাপুৰত থকা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ উপৰিও অখিল গগৈয়ে 5টাকৈ অনুৰোধ জনাইছে। কেৱল মাত্ৰ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, অখিল গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আপোনালোকে যিহেতু বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কেইটা পূৰণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। সমান্তৰালকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়াৰো দাবী উত্থাপন কৰিলে, অনুৰোধ জনালে বিধায়ক অখিল গগৈ। এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ সেই বিশেষ ভিডিঅ' বাৰ্তা আমি দৰ্শকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। नमस्कार मोदी जी, नमस्ते। असम में आपको स्वागत करता हूं। आप असम सफ़र में आया है, इसीलिए मैं असम असेंबली का एक विधायक बन के, लेजिस्लेटर बन के आपको वेलकम करता हूं। और मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूं, राइजर दल बोल के। इस पार्टी से भी आपको स्वागत है। मोदी जी प्लीज़ इस सफ़र में आप एक बार असम का कल्चरल दोयन, इस समय का और असमीज लोगों का दिल का धड़कन जुबिन गार्ग जी, इसका जो समाधि क्षेत्र है जुबिन क्षेत्र बोलता है, इस पर एक बार एक सफ़र कर लीजिएगा प्लीज़। यह असमीज लोगों से आपके लिए एक बहुत जोरदार एक अनुरोध है। मोदी जी, अभी तक हम लोग का जुबिन गार्ग जी सबसे बड़ा कल्चरल डोरेन है इस समय का। उसका मौत का, उसका मर्डर का अभी तक अच्छा कुछ विचार नहीं हुआ है। आपका गवर्नमेंट ने एक चार्जशीट दिया है, लेकिन ये चार्जशीट इनसफिशिएंट चार्जशीट है। इस चार्जशीट से कुछ नहीं होगा मोदी जी। तो एक्यूज पर्सन को फांसी भी नहीं होगा, तो उसका डेथ सेंटेंस भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा मोदी जी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी कि जुबिन गार्ग का मौत का ऊपर आप एक बार चीफ मिनिस्टर का साथ बातचीत कर लीजिएगा। एक बार आप एक बार सिंगापुर गवर्नमेंट का साथ बातचीत कर लीजिएगा। हमेशा मैं सोचता हूँ कि आप हमेशा गामूसा लेके, हम लोग का गामूसा लेके आप योगा करते हो, आप कुछ मॉर्निंग वॉक भी करते हो, लेकिन आप आज तक
आज तक जुबिन गार्ग का बारे में कुछ नहीं बोला है, सिंगापुर का साथ बातचीत नहीं किया है, इसीलिए हम लोग का दुख है। प्लीज़ एक बार जुबिन गार्ग का क्षेत्र में आप आ जाइएगा। दूसरा है मोदी जी, आप लोग का गवर्नमेंट ने हम लोग को 4-5 वादा किया था। फर्स्ट वादा किया था कि घुसपैठिया मुक्त एक आसाम बनाने का, लेकिन आज तक घुसपैठिया मुक्त आसाम नहीं बन गया है। लेकिन अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ला के अमुसलमान लोगों को लाने के लिए और आसाम में उस लोग का सिटीजनशिप भी आप दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसका खिलाफ करता हूँ, हम लोग इसका विरोध करता हूँ। प्लीज़ हम लोग को घुसपैठिया मुक्त बना दीजिए। नंबर 3, मोदी जी, आपका गवर्नमेंट ने वादा किया था कि आसाम एकॉर्ड को और आसाम एकॉर्ड का अंदर जो क्लॉज 6 है, ये क्लॉज 6 को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज़ कर दीजिए मोदी जी। 4th है मोदी जी, आसाम को आप बाढ़ मुक्त बनाने के लिए वादा किया था, अभी तक नहीं हुआ है। कुछ अमेंडमेंट बन गया है, लेकिन अभी तक बाढ़ मुक्त नहीं हुआ है। इसका ऊपर कॉम्प्रहेंसिव कुछ काम कर दीजिएगा मोदी जी। लेकिन सबसे बड़ा एक आसामीज लोगों का, सबसे बड़ा एक जो आसामीज लोगों के लिए आप लोग का वादा था, आप खुद बताया था बंगाईगांव में, आपका याद है ना? बंगाईगांव जब आप इलेक्शन सफर के लिए आया था तो 2016 में आपने बताया था कि आसाम का 6 कम्युनिटीज़ को, मोरान, मतक, आहोम, सुतिया, कुछ राजवंशी और ट्री ट्राइब्स को आप लोगों ने 6 सीडलिंग कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मोदी जी ये कर दीजिएगा प्लीज़। मोदी जी, आप लोग का गवर्नमेंट का और एक बड़ा एक वादा था कि आसाम का जितना प्लेन ट्राइबल लोग है, उस ट्राइबल लोगों का जो ऑटोनॉमी है, इसको 6 सीडलिंग करने के लिए आप लोग वादा किया था, ये भी नहीं माना है। मोदी जी, आप आए हो, इसीलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं आसाम का सबसे लड़ाकू, सबसे सक्रिय और सबसे बीजेपी का विरोध करने वाला लेजिस्लेटर हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी जी ये सब काम कर दीजिए प्लीज़। आसाम सफ़र में आपको स्वागत करके मैं इतना रिक्वेस्ट ही करता हूँ, प्लीज़ ये कर दीजिएगा और आसाम सफ़र अच्छा होगा, इसीलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। नमस्कार मोदी जी, नमस्ते। आसाम में आपको स्वागत करता हूँ। आप आसाम सफ़र में आया है, इसीलिए मैं आसाम असेंबली का एक विधायक बन के, लेजिस्लेटर बन के आपको वेलकम करता हूँ। और मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ, राइजर दल बोल के, इस पार्टी से भी आपको स्वागत है। मोदी जी, प्लीज़ इस सफ़र में आप एक बार आसाम का कल्चरल दोयन, इस समय का और आसामीज लोगों का दिल का धड़कन जुबिन गार्ग जी, इसका जो समाधि क्षेत्र है, जुबिन क्षेत्र बोलता है, इस पर एक बार एक सफ़र कर लीजिएगा प्लीज़। यह आसामीज लोगों से आपके लिए एक बहुत जोरदार एक अनुरोध है। मोदी जी, अभी तक हम लोग का जुबिन गार्ग जी सबसे बड़ा कल्चरल डोरेन है इस समय का, उसका मौत का, उसका मर्डर का अभी तक अच्छा कुछ विचार नहीं हुआ है। आपका गवर्नमेंट ने एक चार्जशीट दिया है, लेकिन ये चार्जशीट इनसफिशिएंट चार्जशीट है। इस चार्जशीट से कुछ नहीं होगा मोदी जी, तो एक्यूज पर्सन को फांसी भी नहीं होगा, तो उसका डेथ सेंटेंस भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा मोदी जी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी कि जुबिन गार्ग का मौत का ऊपर आप एक बार चीफ मिनिस्टर का साथ बातचीत कर लीजिएगा। एक बार आप एक बार सिंगापुर गवर्नमेंट का साथ बातचीत कर लीजिएगा। हमेशा मैं सोचता हूँ कि आप हमेशा गामूसा लेके, हम लोग का गामूसा लेके आप योगा करते हो, आप कुछ मॉर्निंग वॉक भी करते हो, लेकिन आप आज तक
आज तक जुबिन कार्ड का बारे में कुछ नहीं बोला है, सिंगापुर का साथ बातचीत नहीं किया है, इसीलिए हम लोग का दुख है। प्लीज़ एक बार जुबिन कार्ड का क्षेत्र में आप आ जाइएगा। दूसरा है मोदी जी, आप लोग का गवर्नमेंट ने हम लोग को 4-5 वादा किया था। फर्स्ट वादा किया था कि घुसपैठिया मुक्त एक आसाम बनने का, लेकिन आज तक घुसपैठिया मुक्त आसाम नहीं बन गया है। लेकिन अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ला के वो अमुसलमान लोगों को लाने के लिए और आसाम में उस लोग का सिटीजनशिप भी आप दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसका खिलाफ करता हूँ, हम लोग इसका विरोध करता हूँ। प्लीज़ हम लोग को घुसपैठिया मुक्त बना दीजिए। नंबर 3, मोदी जी, आपका गवर्नमेंट ने वादा किया था कि आसाम एकॉर्ड को और आसाम एकॉर्ड का अंदर जो क्लॉज 6 है, ये क्लॉज 6 को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज़ कर दीजिए मोदी जी। 4th है मोदी जी, आसाम को आप बाढ़ मुक्त बनाने के लिए वादा किया था, अभी तक नहीं हुआ है। कुछ अमेंडमेंट बन गया है, लेकिन अभी तक बाढ़ मुक्त नहीं हुआ है। इसका ऊपर कॉम्प्रहेंसिव कुछ काम कर दीजिएगा मोदी जी। लेकिन सबसे बड़ा एक आसामीज लोगों का, सबसे बड़ा एक जो आसामीज लोगों के लिए आप लोग का वादा था, आप खुद बताया था बंगाईगांव में, आपका याद है ना? बंगाईगांव जब आप इलेक्शन सफर के लिए आया था तो 2016 में आपने बताया था कि आसाम का 6 कम्युनिटीज़ को, मोरान, मतक, आहोम, सुतिया, कुछ राजवंशी और ट्री ट्राइब्स को आप लोगों ने 6 सीडलिंग कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मोदी जी ये कर दीजिएगा प्लीज़। मोदी जी, आप लोग का गवर्नमेंट का और एक बड़ा एक वादा था कि आसाम का जितना प्लेन ट्राइबल लोग है, उस ट्राइबल लोगों का जो ऑटोनॉमी है, इसको 6 सीडलिंग करने के लिए आप लोग वादा किया था, ये भी नहीं माना है। मोदी जी, आप आए हो, इसीलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं आसाम का सबसे लड़ाकू, सबसे सक्रिय और सबसे बीजेपी का विरोध करने वाला लेजिस्लेटर हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी जी ये सब काम कर दीजिए प्लीज़। आसाम सफ़र में आपको स्वागत करके मैं इतना रिक्वेस्ट ही करता हूँ, प्लीज़ ये कर दीजिएगा और आसाम सफ़र अच्छा होगा, इसीलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। नमस्कार मोदी जी, नमस्ते। आसाम में आपको स्वागत करता हूँ। आप आसाम सफ़र में आया है, इसीलिए मैं आसाम असेंबली का एक विधायक बन के, लेजिस्लेटर बन के आपको वेलकम करता हूँ। और मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ, राइजर दल बोल के, इस पार्टी से भी आपको स्वागत है। मोदी जी, प्लीज़ इस सफ़र में आप एक बार आसाम का कल्चरल दोयन, इस समय का और आसामीज लोगों का दिल का धड़कन जुबिन गार्ग जी, इसका जो समाधि क्षेत्र है, जुबिन क्षेत्र बोलता है, इस पर एक बार एक सफ़र कर लीजिएगा प्लीज़। यह आसामीज लोगों से आपके लिए एक बहुत जोरदार एक अनुरोध है। मोदी जी, अभी तक हम लोग का जुबिन गार्ग जी सबसे बड़ा कल्चरल डोरेन है इस समय का, उसका मौत का, उसका मर्डर का अभी तक अच्छा कुछ विचार नहीं हुआ है। आपका गवर्नमेंट ने एक चार्जशीट